Emblem Academy. Hi, good morning everyone. Welcome to Emblem Academy. I am Vishwajit Kumar, Faculty of General Study. So, all of you know we have started our NCERT Foundation course where we are going to cover all NCERT from class 6 to 12th. Okay. So, basic purpose of this course to basically build your basics first. Okay. So, with this we have also launched few modular courses like NCERT, which is already going on, maths, reasoning and general science. So just go and see all these courses also. Oh, and after a few couple of months, a few our modular courses going to launch, in which our emblem team cover history, economy, geography, political science and current affair, where these three things are reasoning, sciences, maths are already going on. Okay, so as you know, we have studied in first lecture regarding the syllabus. Okay, सिलेबस 12th क्लास के हिस्ट्री सब्जेक्ट जो है उसका सिलेबस हमने अच्छी तरह किया था, और वो 12th क्लास हिस्ट्री को कितने पार्टों में बांटा गया. ओके, थीम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थीम, पार्ट, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. जस्ट गो एंड सी ऑल लेक्चर्स which are already uploaded in our playlist. Okay, so we have discussed the all contents like part 1, part 2, part 3, in which we have finished this part 1. Okay, in which we have finished this one, bricks, beads and bones of Harappan civilization. Today we are going to start kings, farmers and towns. Okay, हम आज पढ़ने वाले हैं kings, farmers and towns. when, which period की बात करेंगे? 600 BC to 600 CE. What is the meaning of CE? We have already discussed circa. जब हम किसी डेट को एग्जैक्ट नहीं जान पाते उसके पहले क्या लगाते हैं? सी लगाते हैं. ओके, so all difficult words we have already explained here. Okay, so we have already explained all these things in first lecture. Again, just go and see and read very carefully. What is the peasants, zamindar, colonialism, Mughal empire, ये सारे आप, हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. वी हैव ऑल्सो कवर्ड दिस, बस आई एम जस्ट गोइंग टू समराइज दिस वन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीसी? बीसी बिफोर क्राइस्ट, जब जीसस क्राइस्ट से पहले जो भी इंसिडेंट, सिविलाइजेशन, तो हम बीसी में काउंट करेंगे लेफ्ट वर्ड. उसको बीसीई भी बोलते हैं. ये सेकुलर टर्म कह सकते हो और ये रिलीजियस टर्म, क्योंकि वो जीसस क्राइस्ट के रिलीजन, ईसा मसीह के जन्म के रिलीजन, जो उनका रिलीजन है उससे है. ओके, क्रिश्चियनिटी को आप कह सकते हो. एनो डोमिनी एडी, जब हम इनके जन्म के बाद जो भी इंसिडेंट, सिविलाइजेशन, कुछ भी इवेंट्स हुए उसको हम एडी में काउंट करते हैं, और उसको आप एनो डोमिनी भी बोल सकते हो और कॉमन एरा भी बोल सकते हो. ओके, यही इसका बेसिक मीनिंग था. मैंने फर्स्ट चैप्टर में और भी अच्छी तरह इसको किया हुआ है फर्स्ट लेक्चर में. सो स्टोन एज 2 million BC to 2700 BC. So we have not covered this because this is not in your syllabus. When we will start modular course, then I will cover this one, so don't worry. I have started from here where we have finished this topic, IBC, इंडियन वैली सिविलाइजेशन. ओके, मैंने बहुत अच्छी तरह अगेन बोल रहा हूँ कवर किया, उस पर बहुत सारे क्वेश्चन आंसर हमने किए हैं. हर 10-15 स्लाइड के बाद एग्जाम पर्सपेक्टिव से कैसे ये इंपॉर्टेंट है वो कवर किया. आज हम पढ़ने जाएंगे, वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे वैदिक लिटरेचर, व्हिच इज बेसिकली टाइम पीरियड फ्रॉम 1500 BC to 600 BC. Okay, after that we are going to study this one also, Mahajanapada period. Okay, where we are going to see some important you can say cities, okay, like Taxila. Okay, and Mauryan period also to some extent. Okay, so let's see. This is our basically chapter 2, where the name of the chapter and title king, farmer and what and towns. Okay, so let's see, देखते हैं. So हम एक एक लाइन और एक एक वर्ड को अच्छी तरह पढ़ेंगे, अच्छी तरह समझेंगे, उसका मीनिंग समझेंगे क्या होगा. So don't worry, just see. Okay, so kings, farmers and towns on which period? Early states and economy. When early state and economics formed, like in which period? C 600 BC to 600 CE. Okay, so let's start. There were several developments in different parts of the subcontinent during long span of 15 years. अगर after the end of the हड़प्पा civilization, जब हड़प्पा civilization में क्या होता है, पतन होता है,
तो 15 साल के दौरान क्या होता है, न्यू न्यू सिटीज का इवॉल्व होता है, इमरजेंस होता है ड्यूरिंग द एंड ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। ओके, जैसे मैंने कहा आपको, this was also the period during which the Rigveda was composed by people living along the Indus and East tributary। अब ये ऐसा भी पीरियड था जहां पे ऋग्वेदा क्या एक रिलीजियस टेक्स्ट था, उसका कंपोजिशन हुआ, और किसने किया, जो उन लोगों के द्वारा जो इंडस सिंधु घाटी और उनकी जो सहायक नदी थी उनके पास। अब ट्रिब्यूटरी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिब्यूटरी? व्हेन सपोज दिस इज द बेसिकली अ मेन रिवर and surrounding lot of small river coming and enter into main river, इसी को हम क्या बोलते हैं, tributaries बोलते हैं। तो यहाँ पे है, when we are going to study geography we will see tributary, distributaries, okay, catchment area, watershed, we will study also, so don't worry। Agriculture settlement emerged in many parts of the subcontinent, including North India, Deccan Plateau. Again, geographical term. What is the meaning of Deccan Plateau? Which states are basically included in Deccan Plateau? Deccan Plateau में कौन-कौन से state आते हैं? Okay, again geography, but we are going to just touch this thing. Okay, and parts of Karnataka। अब देखो, जब इस टाइम पीरियड में एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ, ओके, कहाँ डेवलपमेंट हुआ, नॉर्थ इंडिया में हुआ, ओके, डेक्कन प्लेटू में हुआ, जो हम महाराष्ट्र कर्नाटका का एरिया देखते हैं वहां पे, देन कर्नाटक, ये अगेन तमिलनाडु, ओके, कर्नाटका। इसके अलावा देयर इज एविडेंस of pastoral population। What is the meaning of pastoral population? It means that one few people and few community herding and raising the animals। एनिमल्स जैसे आप देख, चरवाहा, जिसके चरवाहा संप्रदाय कम्युनिटी उनको बोल सकते हो, देखते हो आप सीप जैसे भेड़ों को चराते हैं, जैसे उनका राइज होता है इन द डेक्कन एंड फर्दर साउथ। जब हम साउथ की तरफ जाएंगे, ओके, तमिलनाडु, कर्नाटका, यहाँ पे चेन्नई की तरफ मूव करेंगे, ओके। सो न्यू मोड्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ द डेड, आप देखो यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट, न्यू मोड्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ द डेड, including the making of elaborate stone structure known as, again very important, megalithic। इसको क्या बोलते, अब देखो मृत जो शरीरें होती थी उनका न्यू वे ऑफ डिस्पोजल स्टार्ट हो गया, ओके, और वो क्या करते थे, जहां पे इसको डिस्पोज करते थे, दफनाते थे, वहां पे बड़े बड़े पत्थर खड़े कर दिए जाते थे, उसी को क्या बोलते हैं, मेगालिथिक बोलते हैं। अगेन देयर आर लॉट ऑफ टर्म्स रिगार्डिंग द मेगालिथिक, लाइक डोलमेन क्या होता है, सो वी आर गोइंग टू स्टडी इन मोडलर कोर्स, सो आई एम नॉट गोइंग टू स्टडी बिकॉज इट इज नॉट इन योर सिलेबस। emerge in central and south India from the first millennium BC। 1000 years की अगर बात करें तो यहाँ पे ये इमर्ज होता है किसका, मेगालिथिक कल्चर का। आप बोल सकते हैं which type of culture basically evolved, megalithic culture, okay, in which part, basically Deccan and South India, okay। So in many cases the dead were buried with rich range of what, iron tools and bone, iron tools and weapons, sorry, weapons, okay। It means that जब उनको बरीड किया जाता था उनके साथ साथ क्या, आयरन टूल्स, लोहे का औजार भी और वेपन भी उनके साथ रखा जाता था, ओके। सो फ्रॉम C6 सेंचुरी BC, अगर हम 6th सेंचुरी BC की बात करते हैं, वहां से अगर हम देखते हैं, देयर इज व्हाट एविडेंस दैट देयर वर अदर ट्रेंड्स एज वेल, कुछ और ट्रेंड्स चल रहे हैं उसके बारे में। परहैप्स द मोस्ट विजुअल वाज द इमर्जेंस ऑफ अर्ली स्टेट, जिसमें से विजुअल जो हमें देखने को मिलती है, वो क्या देखने को मिलती है, अर्ली स्टेट। अर्ली स्टेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, एम्पायर्स, ओके, देन किंगडम्स, इसके बारे में हम देख पाते हैं। अंडरलाइंग दीज पॉलिटिकल प्रोसेस वर अदर चेंजेस evident in the ways in which agriculture production was organized। when all these things are grow in very advanced manner, then agriculture production कैसा था, very organized manner में था। simultaneously new towns appear almost कहाँ, थ्रू आउट द सबकॉन्टिनेंट, ओके। जैसे न्यू टाउन्स का डेवलपमेंट होने लगा इंडिया एंड सराउंडिंग एरिया में, आप देख सकते हैं बहुत सारे पढ़ेंगे ऐसे हम टाउन्स को, जिसमें से तक्षशिला हम पढ़ेंगे, गंधार पढ़े, ओके। हिस्टोरियन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड दीज डेवलपमेंट्स बाय ड्रॉइंग ऑन अ रेंज ऑफ सोर्सेज। अब जो हिस्टोरियंस होते हैं, जो इतिहासकार होते हैं, वो कैसे पता लगा पाते हैं इन सब चीजों के बारे में, कैसे, आप खुद थिंक करो, इंस्क्रिप्शन से,
टेक्स्ट बुक से जो जो इंस्क्रिप्शन है जो लिखे गए हैं क्या पे सॉलिड मटेरियल पे जैसे रॉक पे लिखे गए, वुड पे लिखे गए, उसको स्टडी करते हैं और पता लगा पाते हैं। देन उसके बाद जो टेक्स्ट होते हैं, जो भी टेक्स्ट बुक होते हैं उनसे पता लगा पाते हैं, जैसे क्वाइंस हो गए, ओके क्वाइंस हो गए, विजुअल आर्ट हो गए, ओके। एज वी विल सी दिस इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, नॉट अ सिंपल वेरी प्रोसेस। You will also notice that these sources do not tell the entire story. According to this, do you think that जो ये जितने भी है स्टडी करते हैं हिस्टोरियन, इससे क्या हमें एंटायर कल्चर, एंटायर सोसाइटी के बारे में पता लगा पाते हैं? नो, इट्स नॉट श्योर, ओके। तो वहीं पे यहाँ पे लिखा गया है। नाउ आप देख सकते हैं जो इंडिया के मैप में, लेट्स सी गाइज, द हिमालयन रेंज, द नॉर्दर्न प्लेन, how all these develop and formed. Again we will study in geography lecture. Just see this India map to memorize, okay, where Deccan Plateau will cover lot of state, Maharashtra, Andhra Pradesh, Karnataka and so on. Indian desert, Rajasthan in case to some extent to Gujarat, western and eastern Ghat also. So Rigveda, देखो ऋग्वेदा का composition एक ऋषि मशी कैसे कर रहे हैं, इनके ये राइटिंग है जो यहाँ पे लिखे गए हैं, okay. So now we are going to see what is the difference between empire, kingdom and state, okay. अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं, एम्पायर किसे बोलते हैं, किंगडम किसे बोलते हैं, स्टेट किसे बोलते हैं। सो लेट्स सी वन बाय वन मीनिंग देखते हैं। अ लार्ज ग्रुप ऑफ मेनी टेरिटरीज रूल्ड बाय वन एम्पायर और एम्पायरस, इट मींस दैट वो बहुत सारी जो टेरिटरीज होगी, ओके, छोटी हो चाहे बड़ी, उसको एक एम्पायर उसको कंट्रोल करेगा, रूल करेगा। अ कंट्री रूल्ड बाय किंग और क्वीन, ओके, जो एक देश होगा उसको किंग और क्वीन बेसिकली रूल करे। स्टेट पॉलिटिकल एरिया विद ऑन गवर्नमेंट एंड फिक्स बॉर्डर। स्टेट किसको बोलते हैं? इंडिया इज ए नेशन स्टेट और स्टेट नेशन। तो इट्स दिस इज योर क्वेश्चन फॉर यू गाइस, ओके। और ये एग्जाम में अगेन पूछते हैं। तो पॉलिटिकल पावर जिसका एक फिक्स बाउंड्रीज होगा, उसका अपना गवर्नमेंट सिस्टम होगा। और साइज वेरी लार्ज और स्मॉलर देन एन एम्पायर, एम्पायर से ये थोड़ा छोटा होगा। कैन बी लार्ज और स्मॉल, स्टेट होगा, ये पूछे जाते हैं, आपको फंसा देंगे। एम्पायर कैन बी लार्ज और स्मॉल, स्टेट कैन ओनली लार्ज नॉट स्मॉल। तो ऐसे कुछ वर्ड आपको आगे पीछे करके वो फंसाएंगे एग्जाम में। सो जस्ट गो एंड रीड एंड स्टडी वेरी केयरफुली। रूलर, एम्पायर, एम्पायरस, किंग और क्वीन कह सकते हो। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, किंग और अदर लीडर, इंडिया की जैसे हम बात करें, इससे आप पता लगा सकते हैं इंडिया इज ए नेशन स्टेट और स्टेट नेशन, ओके। सो फॉर्मेशन ऑफन फॉर्म बाय कॉन्क्वेरिंग अदर लैंड्स। एम्पायर को कैसे फॉर्म किया जाता है? जब हम किसी अदर लैंड को कॉन्क्वेयर करते हैं, ओके। यूजली रूल्ड बाय वन रॉयल फैमिली, एक रॉयल फैमिली, जैसे आप ब्रिटेन को आप ले सकते हो यहाँ पे। फॉर्म बाय पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज एंड लॉज, ओके, जैसे इंडिया हो गया, यूएसए हो गया। एग्जाम्पल मौर्यन एम्पायर, यूनाइटेड किंगडम एंड इंडिया, जैसा मैंने अगेन आपको पहले बोल दिया, ओके। सो आप देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। अगेन गाइस दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, डोंट मिस इट, ओके। देखिए शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ऋग्वेदा? ऋग्वेदा का क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है भाई, बताओ, थिंक करो, बताओ, ओके। इट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन इंडियन हिस्ट्री एंड गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट पीपल लिविंग इन दैट एरिया, पीपल कैसे रहते थे, ओके, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया। कुछ रूल्स रेगुलेशन थे, ओके, रिलीजन रूलर्स आर के लिए, वो भी आप बोल सकते हैं। मेगालिथी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, जस्ट आई एम गोइंग टू रीड इट। मेगालिथी वर लार्ज स्टोन बरियल स्ट्रक्चर फाउंड इन सेंट्रल एंड साउथ इंडिया फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम फर्स्ट मिलेनियम बीसी, ओके। लार्ज स्टोन स्ट्रक्चर बरियल्स के सराउंडिंग में रख दिए जाते थे, ओके। व्हाट डज एपिग्राफी मीन? एपिग्राफी क्या है? एपिग्राफी इज स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन इट मींस व्हाटएवर हैव रिटन ऑन द हार्ड सरफेस, यू कैन से द रॉक, रॉक पे जो भी वहां पे लिखा गया। जेम्स प्रिंसेप कौन थे? ऑफिसर ऑफ द विच ईस्ट इंडिया कंपनी हु डेसिफर्ड विच स्क्रिप्ट, इंडियन स्क्रिप्ट। जब हम देखेंगे इन्होंने स्क्रिप्ट ब्राह्मी अक्रोस्ती स्क्रिप्ट को डेसिफर किया, पता लगा पाया जो कैसे पढ़े जाते हैं, ओके। व्हाट चेंज टुक प्लेस अराउंड द 6th सेंचुरी? 6th सेंचुरी बीसी में क्या क्या चेंजेस आए? जैसे देखो क्या हुआ, अर्ली स्टेज का फॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ? किंगडम्स एंड एम्पायर्स इमर्ज, agriculture production increased and new towns developed, okay। So again long answer, पहले हमने देखा short question answer, आप देखते हैं long answer। Describe the developments that took place after the end of Harappan civilization।
we are going to see how after the end of the civilization what happened. Okay, so let's see. After the Harappan civilization ended, many developments occurred. कुछ डेवलपमेंट हुए, जैसे देखते हैं द ऋग्वेदा वाज कंपोज, मोस्ट इंपोर्टेंट व्हाट ऋग्वेदा वाज कंपोज, एग्रीकल्चर सेटलमेंट spread across North India, the Deccan Plateau and Karnataka. We have already studied in previous slide. Okay, pastoral communities grew in the Deccan region. हम देखें pastoral community का बताया, definition भी बताया. Megalithic burials become common in which part of the India? Central and South India. Okay, around the 6th century BC, early state kingdoms and town emerged due to changes. What? Agriculture and political organization. Explain the contribution of James Prinsep to Indian history. Again, very important question. What is the contribution of James Prinsep in Indian history? तो कैसा हमने क्या बोला, स्क्रिप्ट का उन्होंने क्या किया, डिसिफर किया, पता लगाया जो कैसे पढ़े जाते हैं. तो चलिए देखते हैं. In the 1813, James Prinsep deciphered Brahmian was Kharosthi script found in inscription and coins पे उनको मिले. He discovered that many inscription mention what? A ruler called Piyadasi. उन्होंने देखा जो जितने भी इंस्क्रिप्शन थे बहुत, जिसपे पियादसी एक वर्ड था और वो किसको डिनोट करता है, रूलर को डिनोट करता है. रूलर कौन थे? अशोका. चलिए हम देखते हैं. His work help historians understand ancient Indian rulers and political history. अब जो इनका जो भी कंट्रीब्यूशन था, जो अगेन आने वाले आर्कियोलॉजिस्ट हिस्टोरियन उनको बहुत सहायक सिद्ध हुआ. देन देखते हैं क्वेश्चन थर्ड, हाउ डू हिस्टोरियन रिकंस्ट्रक्ट अर्ली इंडियन हिस्ट्री. हम यहाँ देखते हैं जो कैसे जो हिस्टोरियन है वो अर्ली हिस्ट्री को कैसे रिकंस्ट्रक्ट करते हैं. ओके, हिस्टोरियन यूज इंस्क्रिप्शन. ओके, कैसे करेंगे? इंस्क्रिप्शन यूज करेंगे, टेक्स्ट पढ़ेंगे, क्वाइंस पढ़ेंगे, विजुअल मटेरियल जो स्कल्पचर है उसको देखेंगे टू अंडरस्टैंड अर्ली इंडियन हिस्ट्री. दीज सोर्सेज प्रोवाइड व्हाट? वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, दो दे डू नॉट टेल द कंप्लीट स्टोरी. बट ये नहीं है जो वो कंप्लीट स्टोरी को बयां कर सकती है उस टाइम पीरियड को. ओके, सो अगेन आपके लिए कुछ मल्टीपल टाइप क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव बोल सकते हो, मल्टीपल टाइप. ऋग्वेदा वाज कंपोज्ड, मैं नहीं जानता हूं, आपको बताना. मेगालिथी वर मेनली यूज्ड फॉर एपिग्राफी, द स्टडी ऑफ, एंड जेम्स प्रिंसेप वर्क फॉर. मैंने आंसर तो डाल ही दिया है, तो क्या प्रॉब्लम है? इट्स अ वेरी इजी फॉर यू. ओके, देखो इंस्क्रिप्शन सांची मध्य प्रदेश, ये इंस्क्रिप्शन ऐसे मिले. देखो कैसे हार्ड सरफेस पे लिखे गए, पता लगा पा रहे किसको क्या लिखा है? जस्ट गो आंसर्स. ओके, प्रिंसेप एंड पियादसी. अब दोनों का देखते हैं. प्रिंसेप, हु वाज प्रिंसेप, एंड पियादसी. What is the meaning of Piyadasi? We have already studied. Just we are going to see again. Some of the most momentous development in Indian epigraphy took place in 1830. ठीक है, हम अगर देखिए तो कुछ important development took place होते हैं in 1830 के अराउंड. देखते हैं. This was when James Prinsep officers in the Mint of the East India. किस ऑफिसर्स, किस डिपार्टमेंट का? मिंट, टकसाल जिसे बोलते हैं, जहां पे मिंट पैसों की मैन्युफैक्चरिंग और कैसे बनते थे वहां पे. डेसिफर व्हाट? ब्राह्मी एंड खरोस्ती स्क्रिप्ट. टू स्क्रिप्ट यूज इन द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन एंड क्वाइन. जो कहाँ यूज होते थे? अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन एंड क्वाइंस जो बनते थे वहां पे इसको ये यूज होते थे ये स्क्रिप्ट. ओके, ही फाउंड दैट, वो पता लगा पाते हैं, खोज पाते हैं. मोस्ट ऑफ दिस मेंशन अ किंग रेफर टू एज पियादसी. जो पियादसी ये वर्ड है वो किंग को डिनोट करती है. मीनिंग प्लीजेंट टू बिहोल्ड. ओके, जिसका अर्थ देखने में सुखद, ये प्लीजेंट टू बिहोल्ड. ओके, देयर वर ए फ्यू इंस्क्रिप्शन, कुछ ऐसे भी इंस्क्रिप्शन मिले व्हिच आल्सो रेफर टू द किंग एज अशोका, जिसे किंग को अशोका से डिनोट करता है. ओके, वन ऑफ द मोस्ट फेमस रूलर नोन फ्रॉम बुद्धिस्ट टेक्स्ट. अब अशोका को बहुत इंपॉर्टेंट रूलर भी कहा जाता है अगर हम बुद्धिस्ट टेक्स्ट की अगर बात करते हैं तो. क्यों? वो हम लेटर पढ़ेंगे कि उन्होंने बुद्धिज्म जो रिलीजन था उसको बड़ी लार्ज स्केल में स्प्रेड किया. ओके, देखते हैं. दिस गेव ए न्यू डायरेक्शन इन इन्वेस्टिगेशन इनटू अर्ली इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री. अब ये है न्यू डायरेक्शन देता है जो इंडियन का जो पॉलिटिकल हिस्ट्री था. ओके, एज यूरोपियन एंड इंडियन स्कॉलर यूज्ड इंस्क्रिप्शन. जो स्कॉलर्स थे इंडियन और यूरोपियंस थे वो क्या करते हैं? टेक्स्ट कंपोज इन वैरायटी ऑफ लैंग्वेज
to reconstruct the lineage of the major dynasty that had ruled the subcontinent. अब ये इंस्क्रिप्शन वो स्टडी करके जो स्कॉलर्स होते हैं, चाहे इंडियंस हो गए चाहे यूरोपियंस हो गए, वो क्या रिकंस्ट्रक्ट हिस्ट्री करते हैं, लीनियज जो डायनेस्टी है उनकी जो वंशज है उससे वो कोरिलेट करना चाहते हैं स्टडी करके. ओके, सो देखते हैं एज ए रिजल्ट द ब्रॉड कंटूर्स ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री की अगर हम बात करें ओवरव्यू, प्लेस बाय द अर्ली डिकेड्स ऑफ द 20th century, subsequent scholars began to shift their focus to the context of political history. अब अगेन मैंने क्या बोला, जो हिस्टोरियंस स्कॉलर्स होगा उनका शिफ्ट इंटरेस्ट कहाँ जाएगा, पॉलिटिकल हिस्ट्री के तरफ जाएगा और इन्वेस्टिगेट करेंगे whether there were connection between political changes, economic and social. वहां पे चेंजेस है कि नहीं है, किस टाइप के चेंजेस, सोशल चेंजेस, इकोनॉमिकल चेंजेस, उसको लिंक करेंगे वो सब स्टडी करके. ओके, देन we'll see it was soon realized that while other were links, these were not always simple or direct. जल्दी ही वो रियलाइज कर पाते हैं जो ये सिंपल और इतना आसान नहीं है. ओके, आप देख सकते हैं जेम्स प्रिंसप हमारे, और देन उसके बाद एम्पायर अशोका. ये मैंने जस्ट आपको मेमोराइज करने के लिए इन दोनों के मैंने यहाँ पे पिक्स लगाए. आप पढ़ेंगे द अर्ली स्टेट, द 16 महाजनपदा, वेरी इंपॉर्टेंट. और ये एग्जाम में एक क्वेश्चन तो 100% श्योर है, जो एक क्वेश्चन महाजनपद पीरियड से किसी भी एग्जाम में अगर ना पूछे ऐसा हो ही नहीं सकता है. ओके, और उसके बाद रिलीजियस जैनिज्म, बुद्धिज्म पे. ओके, तो देखते हैं द 6th century BC is often regarded what a major turning point in early Indian history. मेजर टर्निंग पॉइंट होता है, क्यों होता है, क्योंकि evolution, emergence of what cities, towns and so on. Okay, so it is an era associated with early state. Okay, cities growing of use of iron का यूज बहुत लार्ज स्केल में हुआ. डेवलपमेंट ऑफ what coinage. It also witnessed the growth of what diverse system of thought, including the Buddhism and Jainism. Thought, Buddhism, Jainism का भी इसी पीरियड में राइज होता है. ओके, देन हम देखते हैं अर्ली बुद्धिज्म एंड जैन टेक्स्ट, जो हम क्या पढ़ेंगे इन विच चैप्टर 4 में, मेंशन अमंग्स द अदर थिंग 16 स्टेट्स नोन एज महाजनपद. जो क्या कोई मेंशन करता है महाजनपद पीरियड के बारे में, 16 स्टेट के बारे में. ऑल द लिस्ट मतलब वेरी हो सकते हैं, बट कुछ ऐसे नेम हम देखेंगे जैसे वजी देखेंगे, मगधा देखेंगे, कोशाला देखेंगे, कुरु देखेंगे, पंचाला देखेंगे, गंधार एंड अवंती अक्कर फ्रीक्वेंटली बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थे. ओके, उस समय. अब देखते हैं, अब देखो क्लियरली दीज वर एमंग्स द मोस्ट इंपोर्टेंट महाजनपद. जैसे मैंने आपको बताया, व्हाइल मोस्ट महाजनपदास वर रूल्ड बाय किंग्स, सम नोन एज गणास एंड संगा. कुछ तो किंग के द्वारा रूल किए जाते, बट कुछ ऐसे जो महाजनपद थे वो एक संघ के द्वारा, एक गणस के द्वारा रूल किया. संघ एक गणा क्या, आप कह सकते ओलिगार्की, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा रूल किए जाते थे, कह सकते हैं. वर ओलिगार्की, जैसे मैंने बताया आपको, वेयर पावर वाज शेयर्ड बाय नंबर ऑफ मेन. पावर क्या शेयर हो जाते थे बिटवीन द पीपल एंड मेन, ऑफन कलेक्टिवली कॉल्ड, जिसे राजा कहा जाता था. ओके, बोथ महावीर एंड बुद्धा बिलोंग टू सच गणा. महावीर जो थे हमारे गौतम बुद्ध थे, वो इसी गणा से बिलोंग करते थे. इन सम इंस्टांस, कुछ एग्जाम, इन केस ऑफ वाजी संघा द राजा प्रोबेबली कंट्रोल रिसोर्सेज. जो राजा थे वो रिसोर्सेज को कंट्रोल करते थे, सच एज लैंड कलेक्टिवली, मतलब एक साथ. ओके, although their histories are often difficult to reconstruct, although we are not have a clear picture regarding their history, okay, to reconstruct due to the lack of what sources, क्योंकि हमारे पास sources नहीं है जो हमें क्लियर पिक्चर मिल सके उनके बारे में. some of these states lasted for nearly 1000 years. इनमें से कुछ ऐसे स्टेट थे जो 1000 years तक सर्वाइव करते हैं. ओके, each महाजनपदा had a capital. जितने भी वहां महाजनपद थे उनके कैपिटल थे. नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे ईच कैपिटल, और देखेंगे मॉडर्न लोकेशन उनके कौन कौन से हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछते हैं जो अवंती का भी लोकेशन कौन सा है, गंधार का लोकेशन कौन सा है, उनके कैपिटल क्या थे. ओके, ईच महाजनपद हैड अ कैपिटल सिटी व्हिच वाज ऑफन फोर्टिफाइड. किलेबंदी होती थी चारों तरफ से. मेंटेनिंग दिस 45 सिटी एज वेल एज प्रोवाइडिंग व्हाट इंसिपिएंट आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी रिक्वायर्ड रिसोर्सेज.
उनको फोटो, अब क्या ब्यूरोक्रेसी रिक्वायर होती थी, उन सबको मेंटेन करने के लिए क्या हमारे पास रिसोर्सेज होना जरूरी है। ओके, सो देखते हैं फ्रॉम C6th century BC ऑनवर्ड ब्रह्मा बिगेन टू कंपोज संस्कृत टेक्स्ट। अब देखो इस पीरियड में एक संस्कृत टेक्स्ट का भी कंपोजिशन होता है, जिसको क्या बोला गया, धर्मसूत्र। क्या हो सकते हैं धर्मसूत्र, ड्यूटीज फॉर होम रूलर्स। ओके, दीज लेट डाउन क्या नॉर्म्स फॉर रूलर्स एज वेल फॉर अदर सोशल व्हाट कैटेगरीज हु वर आइडली एक्सपेक्टेड टू बी क्षत्रिय, जिसे क्षत्रिय कहा जाता है, जो हम चैप्टर 3 में अगेन इसको डिस्कस करेंगे। रूलर वर एडवाइज टू कलेक्ट व्हाट टैक्सेस एंड ट्रिब्यूट फ्रॉम कल्टिवेटर ट्रेडर्स। ऑब्वियसली बात है, रूलर्स क्या कलेक्ट करेंगे, टैक्सेस करेंगे, किससे करेंगे, ट्रेडर्स हो गए, फॉरेस्ट ड्वेलर्स हो गए, उनसे टैक्सेस कलेक्ट करेंगे, आर्टिशियन। वर रिसोर्सेज आल्सो प्रोड्यूस फ्रॉम पैस्टोरलिस्ट से भी करेंगे एंड फॉरेस्ट पीपल से। वी डू नॉट रियली, हम नहीं जान पाते हैं। What we do know is that raids on neighboring state were recognizing such as legitimate means of acquiring wealth। अब क्या रेड करते थे, एक डिफरेंट रूलर डिफरेंट प्लेसेस को रेड करेगा। Why? Because acquiring the wealth। Got it guys? ग्रेजुअली धीरे धीरे हम देखते हैं सम स्टेट्स एक्वायर स्टैंडिंग आर्मी, उनके पास आर्मी थी, स्टैंडिंग आर्मी, मेंटेन रेगुलर ब्यूरोक्रेसी उनके पास होती थी। अदर कंटिन्यू टू डिपेंड ऑन मिलिशिया, और कुछ ऐसे होते थे जो मिलिशिया, जिसे क्या कहा जाता है, नॉर्मल पीपल कह सकता है, वहां से रिक्रूट करते थे, ऑफन फ्रॉम द पीजेंट्री, मोर ऑफन देन नॉट अ पीजेंट्री, जैसे नॉर्मल वैसे होते। Oh guys, you are seeing these all Mahajanapada capital. Just go and download this PDF. I think then it can be visible. Okay, so देखते हैं हम एक एक कैपिटल महाजनपद पीरियड को अच्छी तरह देखते हैं। ओके, पहले देखेंगे गंधार। गंधार देखो कहाँ पे है, यहाँ पे है। कौन से एरिया कह सकते हो, पाकिस्तान का एरिया कह सकते हो हल्का। तो देखते हैं गंधार तक्षशिला, क्या कैपिटल होता था, तक्षशिला। अगेन स्टूडेंट्स लर्न इट एंड स्पीक इट। तक्षशिला लोकेशन कहां हो सकता है, कवरिंग बिटवीन काबुल एंड रावलपिंडी, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस। गंधार हमने देख लिया, कहां कैपिटल तक्षशिला, कहां रावलपिंडी, काबुल, वहां के एरिया को यह कवर करता है। कंबोज, कंबोज वेयर इज कंबोज, अगेन अबव द गंधार। पूछा जाएगा आपका कैपिटल राजपुर। ओके, कवरिंग द एरिया अराउंड द वंच एंड कश्मीर। ओके, कश्मीर के वहां आप देख सकते हो, वहां पे हमारा कंबोज। देन अश्मका, अश्मका कहाँ है, यहाँ पे है। इसकी राजधानी क्या है, पोटन, ठीक है। और उसके बाद कवरिंग मॉडर्न पैटर्न एंड महाराष्ट्र ऑन द बैंक ऑफ रिवर गोदावरी। ओके, विच रिवर, गोदावरी रिवर। ओके, वत्सा, कौशंबी देख सकते, वत्सा कहाँ है, कौशंबी पे है, यहाँ यू कैन सी इन मैप ऑल्सो। आप उसका क्या देखेंगे, कौशंबी उसका कैपिटल था। कवरिंग इलाहाबाद एंड मिर्जापुर, मिर्जापुर सीजन देखा है ना आपने, तो इससे याद रखना आप जरूर, भूलना मत मिर्जापुर सीजन से। ओके, जो वत्सा की कहां थी कैपिटल, कौशंबी, और किस एरिया को, इलाहाबाद और मिर्जापुर को। देन है अवंती, कहां है अवंती, उज्जैन। ओके, यहां आप देख सकते हैं उज्जैन, कहां उज्जैन, कहां पे, महाकालेश्वर मंदिर, हर हर महादेव। आप जाइए वहां पे, बहुत अच्छा वाइब्स आएगा वहां पे। याद रखिएगा अवंती का कहां है कैपिटल, उज्जैन। कवरिंग मॉडर्न का मालवा उज्जैन रीजन ऑफ एमपी। सुरसेन कहाँ है, मथुरा, कहाँ, राधा रानी का, जहाँ देखो हर रिलीजन से आप कनेक्ट कर पाओगे ना, धर्म से, तो आप इजिली याद हो पाएगा। देखो कहाँ पे, सुरसेन, मथुरा, कहाँ पे, यहाँ पे देखो मैप में भी आप देख सकते हैं, जहाँ पे कहाँ पे हमारे मथुरा, जहाँ पे आप कृष्ण भगवान वहां पे पले बड़े, जो भी उन्होंने वहां पे बहुत अच्छे अच्छे वर्क किए उसके बारे में। लोकेटेड मथुरा रीजन ऑफ द जंक्शन ऑफ उत्तर पथ एंड दक्षिण पथ। ओके, देन ए चेदी, कहाँ है, सुक्तिमती, कवरिंग द मॉडर्न बुंदेलखंड एरिया। ओके, देन उसके बाद है मल्ला, कुशीनगर, पावा, मल, वहां पे एक मल राजा भी होता है। व्हेन वी स्टडी अबाउट द बुद्धिज्म देन वी विल सी द रोल ऑफ मल रूलर। ओके, देन मॉडर्न देवरिया, बस्ती, गोरखपुर, मगध किंगडम। कुरुज देखेंगे, हस्तिनापुर। ओके, कुरुज, कुरुक्षेत्र की लड़ाई आप देख सकते हो, हस्तिनापुर। कवरिंग द मॉडर्न डे हरियाणा, दिल्ली एरिया, वेस्ट ऑफ रिवर यमुना। मत्स्य, विराटनगर को हम देखते हैं यहाँ पे। कवरिंग द एरिया ऑफ अलवर, भरतपुर, जयपुर, राजस्थान। वर्जी कहाँ है, वैशाली, वैशाली अगेन आप जान ही रहे वैशाली। और लोकेट द नॉर्थ रिवर ऑफ गंगा, बिहार। अंगा, चंपा
कहाँ, मुंगेर, भागलपुर, बिहार किंगडम, काशी, बनारस, अगेन वेरी इजी। जो इसमें से इजी है गाइस उसको तो आप पहले जस्ट गो एंड जस्ट, जो थोड़े डिफिकल्ट है आप उसको एक दो बार पढ़े, अच्छी तरह पढ़े। ये पीडीएफ आप ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे वेबसाइट पे, हमारे एप्स पे, आप जाइए डाउनलोड कीजिए, इसको रिवाइज कीजिए अगेन एंड अगेन। ओके, लोकेटेड अराउंड प्रेजेंट डे वाराणसी, कोशाला, सरस्वती, कवरिंग प्रेजेंट डे का फैजाबाद, गोंडा, वैरच, मगधा, मगधा अगेन राजगीरा बोल सकते हैं, देन है पंचाला। ओके, ये सारे हमारे जो जनपद थे, कितने हैं देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो ये 16 महाजनपदों को हमने अच्छी तरह स्टडी किया। हर किसी को हमने मैप पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, अगेन लोकेशन देखा, कैपिटल देखा। अब जस्ट जाइए और रिवाइज कीजिए। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शन, नेक्स्ट टॉपिक इज इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन बेसिकली क्या कह सकते हो, जब किसी हार्ड सरफेस पे कुछ मैसेज दिया हो, कुछ लिखा हो उसमें, और उसको हम पढ़ देंगे। इंस्क्रिप्शन आर राइटिंग इनग्रेव ऑन हार्ड सरफेस। देखो मैंने बोला ही आपको पहले, सच एज कैसे हो, स्टोन, मेटल एंड पॉटरी। दे यूजली रिकॉर्ड द अचीवमेंट्स, राजों ने क्या अचीवमेंट किया, एक्टिविटीज, आइडियाज, दो जिसको कमीशन किए हैं, एंड देन इंक्लूड किंग ने क्या कुछ ऐसा शोषण किया वो भी वहां पे लिखा होगा। और डोनेशन मेड बाय, कुछ डोनेशन जो है वुमेन के द्वारा, मैन के द्वारा किसको दिया है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को दिया गया। इंस्क्रिप्शन आर मोस्टली परमानेंट रिकॉर्ड। इसको क्या माना जाता है, परमानेंट रिकॉर्ड माना जाता है। क्यों माना जाता है, बिकॉज ये डिकम्पोज नहीं हो सकते हैं, जस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे डिकम्पोज हो जाते हैं। Some of which carry dates, कुछ में कैरी डेट्स लिखे थे, अदर आर डेटेड ऑन द बेसिस ऑफ पैलियोग्राफी, अकॉर्डिंग टू दैट वी डेटेड। ओके, और स्टाइल ऑफ राइटिंग विद फेयर अमाउंट ऑफ प्रिसीजन, बहुत अच्छे से प्रिसाइज। आप देख सकते हो ये राइटिंग, आप देख सकते हैं कैसे ये सब। विच वर एरिया वेयर स्टेट एंड सिटीज वर मोस्टली डेंसली क्लस्टर्ड, आपको बताने। जनपदा मीन्स द लैंड वेयर जन आर पीपल, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, इन 250 BCE द लेटर रिटर्न लाइक दिस, जैसे हम नेक्स्ट स्लाइड में देखा, ए जैसे देखा, C500 इट वाज रिटन लाइक दिस। The earliest inscription one in which inscription in Prakrit, okay, Prakrit, okay, name for language used by ordinary people, जिसको ordinary people भी बोल जा। पहले क्या, संस्कृत basically is not for the ordinary people, but Prakrit is basically language for ordinary people, सामान्य लोगों के लिए। okay, नेम ऑफ रूलर सच एज अजातशत्रु, अशोका, कुछ ऐसे रूलर्स को हम स्टडी करेंगे। अजातशत्रु, अशोका का तो हमने पिक्स भी देखा। नॉन फ्रॉम प्राकृत टेक्स्ट एंड इंस्क्रिप्शन हैव बीन स्पेल्ड इन देयर प्राकृत फ्रॉम दिस चैप्टर। ओके, जो हम देखेंगे इसके, यू विल ऑल्सो फाइंड आउट कर पाओगे टर्म्स इन लैंग्वेज सच एज पाली ऑल्सो, तमिल एंड संस्कृत ऑल्सो, विच टू वर यूज टू राइट इंस्क्रिप्शन एंड टेक्स्ट। इन्हें भी यूज किया जाते थे इंस्क्रिप्शन और टेक्स्ट लिखने के लिए। ओके, इट इज पॉसिबली दैट पीपल स्पोक इन अदर लैंग्वेज एज वेल, कुछ अदर लैंग्वेज में भी बोली जाती है, इवन दो दीज वर नॉट यूज्ड फॉर राइटिंग, जिसे राइटिंग के तौर पे यूज नहीं किए जाते थे। ओके, सो अगेन गाइज वी आर गोइंग टू स्टडी ईच एंड एवरी वर्ड इन वेरी डिटेल मैनर। मैं हर वर्ड को पढ़ रहा हूँ, हर सेंटेंस को पढ़ रहा हूँ, कुछ भी ऐसा एनसीईआरटी का नहीं जो मैं स्किप नहीं कर रहा हूं। ओके, सो बेसिक पर्पस भी है जो कुछ आपका स्किप ना हो। ओके, मैं इसको जस्ट ऐसे भी पढ़ा सकता था विदाउट स्लाइड, बट माय बेसिक पर्पस टू रीड ईच एंड एवरी वर्ड, ओके, इन वेरी डिटेल मैनर। फर्स्ट अमंग्स द 16 महाजन, आप कुछ देखेंगे ऐसे जो 16 महाजन पे फर्स्ट, जिसमें हम मगध की बात करेंगे। देखो यहाँ पे है ना, मगध का बात किया गया आगे, और अब उसके मगध के हम फीचर्स देखेंगे, वहां पे क्या क्या थे, सिग्निफिकेंस देखेंगे। ओके, उस एरिया के बारे में। प्रेजेंट डे बिहार बिकम द मोस्ट पावरफुल महाजनपद, मोस्ट पावरफुल उनको कहा जाता है। मॉडर्न हिस्टोरियन एक्सप्लेन दिस डेवलपमेंट इन ए वैरायटी ऑफ वेज, बिकॉज वैरायटी ऑफ वेज। मगध वाज ए रीजन वेयर एग्रीकल्चर वहां पे अच्छा था, उसके बाद बिसाइड आयरन माइंस वहां पे अच्छा था, एंड प्रोवाइडेड रिसोर्सेज फॉर टूल्स एंड वेपन, जो आयरन माइंस था। What are the different explanation offered by early writers? अर्ली राइटर ने क्या एक्सप्लेनेशन दिया उसका, एंड प्रेजेंट डे हिस्टोरियन ऑफ द ग्रोथ ऑफ मगध पावर। अर्ली हिस्टोरियन और प्रेजेंट, उन दोनों में क्या डिफरेंसेस है वो आपको पता लगाना। व्हाई वर दीज वॉल्स बिल्ड, क्यों वॉल बिल्ड करेंगे, फॉर डिफेंस। ओके,
अब देखते हैं एलिफेंट, एन इम्पोर्टेंट एलिफेंट, जो हाथी होता था वो आर्मी का वेरी महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता था। ओके, और कहाँ, यहाँ फॉरेस्ट मगधा जो रीजन था बहुत लार्ज स्केल पे पाया जाता था। ऑल्सो द गंगाज एंड इट्स ट्रिब्यूटरी प्रोवाइडेड ए मीन्स ऑफ चीप एंड कन्वीनियंट कम्युनिकेशन। गंगाज के किनारे था जहां पे अब क्या ट्रांसपोर्ट अच्छा हो सकता है, रिसोर्सेज, वाटर के जितने रिसोर्सेज है वो वहां उनको मिल सकते हैं। हाउएवर अर्ली बुद्धिस्ट एंड जैन राइटर हु रोट अबाउट मगधा attributed to its power to the policy of individual। अब जो जैन और जो बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट है वो क्या लिखते हैं, जो कुछ इंडिविजुअल रूलर ऐसे हुए उनके पॉलिसीज, जो पॉलिसीज थे, ठीक है, जो नियम थे, ओके, उनके कारण भी मगधा का जो पावर हुआ, राइज हुआ मगध एम्पायर का। ओके, जैसे उसमें से बिंबिसार की बात कहा गया है, अजात शत्रु की बात क्या, महापद्मानंदा की बात क्या, आर द बेस्ट नो, जिन्हें उनको अच्छी तरह से हम जान पाते हैं। Who help implemented their policy, जो अपने पॉलिसी जो नीतियों के है वो इंप्लीमेंट किए। ओके, इनिशियली राजगाह, प्राकृत नेम फॉर जेंडे, राजगीर को राजगाह भी बोला जाता है। ओके, यहाँ पे देखें वाज द कैपिटल ऑफ मगध का कैपिटल था, बट ओल्ड जिसका ओल्ड नेम है हाउस ऑफ द किंग, राजगीर और राजगाह को आप बोल सकते हैं। राजगाह वाज फोर्टिफाइड सेटलमेंट, किलेबंदी होती थी अच्छी तरह से, लोकेटेड हिल के ऊपर, हिलों के बीच होते थे। इन द 4th सेंचुरी बीसी द कैपिटल वाज शिफ्टेड, बाद में पाटलिपुत्र शिफ्ट हुआ था, प्रेजेंट डे जिसको पटना बोलते हैं। ओके, कमांडिंग रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन अलोंग द गंगा, जो कम्युनिकेशन अच्छी तरह से बिल्ड हो सके, ठीक है, कमांडिंग द रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन अलोंग द गंगा। फोर्टिफिकेशन आप देखो यहाँ पे राजगीर, इनका आप देख सकते हैं फोर्टिफिकेशन कैसे किया हुआ इतनी अच्छी तरह। फिर क्वेश्चंस देखिए, अगेन क्वेश्चन, द 6th सेंचुरी बीसी इज रिगार्डेड, 6th सेंचुरी बीसी इसको किसे हम मानते हैं मेजर टर्निंग पॉइंट इन अर्ली इंडियन हिस्ट्री। क्यों? सिटीज डेवलप्ड हुए, किंग्स के बारे में पढ़े हमने। हाउ मेनी? 16। महाजनपद कितने थे? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज पावर महाजनपद? आप बता सकते हैं मगधा। देन द कैपिटल ऑफ मगध, राजगीर भी। द 6th सेंचुरी बीसी कैपिटल ऑफ मगध शिफ्टेड टू कहां? पाटलिपुत्र। फिल इन द ब्लैंक्स। द लैंड वर जना सेटल इज कॉल्ड जनपदा। द गवर्नमेंट रूल बाय ग्रुप ऑफ मैन, ओलिगार्की। द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन रिटन इन विच? प्राकृत। मगध इज लोकेटेड प्रेजेंट डे बिहार। बिंबिसार आजाद रूलर्स ऑफ व्हाट? मगधा। तो कुछ क्वेश्चंस आप शॉर्ट क्वेश्चंस देखते पहले। व्हाट वर महाजनपदा? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। What is an oligarchy? Okay, power is basically shared by the group of the people. What is the 6th century BC imported? What were inscription? Inscription are writing engraved on hard surface like a stone. Why was Magda powerful? क्यों? Fertile land, iron mines, elephant, army, river, sword. अब long answers ये है। Explain the main features of महाजनपद के जितने फीचर्स है आपको यहाँ पे बताने हैं। Guys, when you see this lecture, जब आप ये लेक्चर पूरा देख रहे हो तो आपको एक ओवरव्यू अच्छी तरह, मुझे लगता है 60 to 70% चैप्टर पे कमांड बहुत ही अच्छा होने वाला है। ओके, बिकॉज you can see that I am not going to skip any word and anything. So, okay, discuss the reason for the rise of Magda. Discuss the rise of Magda. कैसे rise है? फर्टाइल लैंड है, आयरन माइंस, वही क्वेश्चंस है, आप इसको जस्ट पढ़िए और देखिए। What were the difference between states ruled by king and Gana? आप बता सकते हैं किंग और गना के बाद दोनों में क्या डिफरेंसेस है। ओके, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया और ये शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन है, ये आपके लिए। कुछ आपको भी तो करना है, सब हम थोड़ी करेंगे। आंसर आपको क्वेश्चन आंसर करना है, ये आपके लिए हमने दिया है। जस्ट गो एंड राइट इट। एन अर्ली एम्पायर, अब हम कुछ अर्ली एम्पायर के बारे में पढ़ते हैं। द ग्रोथ ऑफ मगधा। अब मगध का देखते हैं ग्रोथ कैसे होता है, क्या क्या ऐसे फीचर्स है जैसे मगधा स्टेट का ग्रो होता है। ओके, देखते हैं। द ग्रोथ ऑफ मगधा कल्मिनेटेड इन द इमरजेंस ऑफ द मौर्यन एम्पायर। जब मौर्यन एम्पायर बनता है, कौन? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। किसके और कौन सहायता करता है? तुम कौटिल्य वहां देखेंगे, चाणक्य देखेंगे। हु फाउंडेड द एम्पायर? Again, I told you, extended control as far as where? Northwest as Afghanistan and Balochistan, जो हमने देखा वहां पे, देखा था ना, कंबोज हमने देखा था वहां पे, गंधार देखा था। इन हिज ग्रैंडसन एंड अशोका, दो रूलर्स के बारे में हम अच्छी तरह पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य जो क्या करते हैं, मौर्यन एम्पायर का फॉर्म करता है। देन उसके बाद अशोका, ग्रैंडसन, पोता उसका बोल सकते हो। आर्गुअबली द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ अर्ली इंडिया। ओके, कनक्वेट कलिंगा 326 बीसी के अराउंड, वो उड़ीसा को करते हैं और उसके बाद वो अपना जो सत्ता है छोड़ देते हैं और बुद्धिज्म अडॉप्ट करते हैं और धम्म
का वो प्रमोशन बेसिकली करते हैं, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। नॉट इन डिटेल मैनर, जस्ट अ लिटिल डिटेल मैनर विल बी कवर इन मॉड्यूलर कोर्सेज। फाइंडिंग आउट अबाउट द मौर्यस, कुछ मौर्यस के बारे में देखते हैं क्या मिलते हैं, कैसे हम पता लगाते हैं। हिस्टोरियन हैव यूज्ड अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ द मौर्य। अब हिस्टोरियन जो होंगे इतिहासकार, वो मौर्यन एम्पायर के बारे में कैसे पता लगाए। ऑब्वियसली वी हैव ऑलरेडी डिस्कस का इंस्क्रिप्शन पढ़ेंगे जो हार्ड सरफेस पे जो लिखे गए हैं, ओके। देन क्वाइंस को स्टडी करेंगे, ओके। देन क्वाइंस पे स्टडी करके वो क्या पता लगाएंगे, जो उन्होंने क्या क्या टाइटल अडॉप्ट किया, ओके। देन उसके बाद और क्या पढ़ सकते हो उसके बारे में, उनका मैसेज क्या था सोसाइटी के लिए, वो हम देखेंगे वहां पे। तो देखिए दीज इंक्लूड जैसे आर्कियोलॉजिकल फाइंड स्पेशली स्कल्पचर, जो मतलब स्कल्पचर मतलब किसी हार्ड आप कहते हैं स्टोन को उसको तराश के काट के कुछ उसमें बनाया जाए, मतलब मूर्ति आप जिसे बोल सकते हो, ओके। देन आल्सो वैल्यूएबल आर कंटेम्परेरी वर्क सच एज एक मगस्थनीज, अगेन मगस्थनीज या ग्रीक एम्बेसडर, किसके चंद्रगुप्त मौर्य में आए थे, उसके हम कुछ उन्होंने क्या लिखा इंडियन सोसाइटी के बारे में वो देखेंगे, जो अभी डिस्ट्रॉय हो चुका, कुछ उसके रिमेन्स जो छोटे छोटे पार्ट है वो अभी बचे हैं, जिसको हिस्टोरियन स्टडी करके पता लगा पाते हैं मौर्यन एम्पायर के बारे में। देखिए जो क्या थे कोर्ट चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में थे, विच सर्वाइव इन फ्रेगमेंट्स, उनके जो टेक्स्ट बुक थे जो उन्होंने लिखा था, ओके। सो देखते हैं अनदर सोर्स, हमने पढ़ा कुछ सोर्स हमने पढ़ा, आप देखते हैं अनदर सोर्स दैट इज ऑफन यूज्ड इन अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसका, अर्थशास्त्र को हम स्टडी करेंगे और उस सोर्स को हम पता लगाएंगे। पार्ट ऑफ दिस वर्क प्रोबेबली कंपोज्ड बाय कौटिल्य और चाणक्य, जो उनके क्या थे पोएट बोल सकते हो आप, वो लिखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। ट्रेडिशनली बिलीव टू बी द मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त, जो उनके मंत्री थे। बिसाइड्स इसके अलावा द मौर्यंस आर मेंशन इन लेटर बुद्धिस्ट एंड जैन में भी इनका उल्लेख किया गया है, मेंशन किया गया है, एंड पुरानिक लिटरेचर में भी एज वेल एज संस्कृत लिटरेरी वर्क में भी, ओके। व्हाइल दीज आर यूजफुल, ऑल आर बेसिकली वेरी यूजफुल। द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, अगर इस टाइम पीरियड की बात करते हैं, ऑन रॉक्स एंड पिलर्स, और ऑफन रिगार्डेड एज अमंग्स द मोस्ट वैल्यूएबल सोर्स। जो अशोकन के जो भी मैसेज थे रॉक पे पिलर पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्टोरियंस के लिए, ओके। अशोका वाज द फर्स्ट रूलर, पहला ऐसा रूलर था, अगेन मार्क दिस वर्ड फर्स्ट, ओके। फर्स्ट रूलर हु इंस्क्राइब्ड हिज मैसेज टू हिज सब्जेक्ट एंड ऑफिशियल ऑन ए स्टोन सरफेस, किस पे, स्टोन सरफेस पे, हार्ड सरफेस के, पहला ऐसा रूलर था जो क्या अपने सब्जेक्ट के अपने मैसेज को पता है क्या स्प्रेड करना चाहा, ओके। लोगों को, पीपल को, नेचुरल लोग जैसे आप पॉलिश पिलर पे भी उन्होंने कुछ वहां पे मैसेज देना चाहा। ही यूज्ड द इंस्क्रिप्शन टू प्रोक्लेम, वो इंस्क्रिप्शन को यूज करके व्हाट ही अंडरस्टूड टू बी धम्मा, धम्मा को क्या समझते हैं, ओके। दिस ही इंक्लूडेड रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द एल्डर्स। अब इसमें जो भी उन्होंने मैसेज देना चाहा, उसमें देखते उन्होंने क्या क्या मैसेज देना चाहा। जस्ट एक समराइज करते हैं यहाँ पे, टुवर्ड एल्डर्स, एल्डर्स को, जनरसिटी टुवर्ड क्या, ब्राह्मण्स, जो ब्राह्मण्स होते हैं जिन्होंने वर्ल्डली क्लास को जो त्याग दिया है, उनके लिए क्या रिस्पेक्ट होना चाहिए, ओके। ट्रीटिंग स्लेव्स एंड जो सर्वेंट्स होते हैं उनके लिए दया भाव होना चाहिए, एंड रिस्पेक्ट फॉर रिलीजन एंड ट्रेडिशन अदर देन वंस, एंड रिलीजन के लिए क्या हो गया, रिस्पेक्ट होना चाहिए। सो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मैसेज अगर आपको दे रहा है एक रूलर, तो आप इससे क्या सीख पाते हैं। जैसे अशोका द ग्रेट एम्पायर, कितना बड़ा राजा होते हुए भी जब उसने देखा जो इसमें इस सोसाइटी में, इस वर्ल्ड में सब कुछ जीतने और हासिल करने के बाद भी कुछ नहीं बचा, ओके, तब उन्होंने देखा एक धर्म को उन्होंने अडॉप्ट किया, बुद्धिज्म को, और जिसके कारण वो दूसरे पीपल के प्रति उनका जेनरसिटी था, काइंडनेस था, वो कुछ डेवलप हुआ, ओके। सो अगर आप फ्यूचर में कुछ बड़े पद पे जाते हैं, कोई अच्छे सिलेक्शन पे जाते हैं, तो आप सोसाइटी से लव एफेक्शन बनाए रखिए, आप सेपरेट मत होइए, ओके। सोसाइटी के लिए कुछ कीजिए, इंसानों के लिए कुछ कीजिए, जिसको जरूरत है आप अगर कर सकते हैं उनके लिए कुछ हेल्प तो वो कीजिए। तो यहाँ से ये मैसेज आपको मिलता है। सो जस्ट रिमेंबर दीज थिंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट। एडमिनिस्ट्रिंग द एम्पायर, देयर आर 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर इन द एम्पायर। 5 ऐसे पॉलिटिकल सेंटर थे एम्पायर के, कैपिटल जैसे पाटलिपुत्र, एंड द प्रोविंस की अगर बात करें जिसमें तक्षशिला, उज्जैन, तोशली एंड सुवर्णगिरी, जिसको क्या बोलते हैं, ऑल मेंशन इन अशोका इंस्क्रिप्शन, ओके। जो
अशोकन इंस्क्रिप्शन में ये सारे मेंशन है। पूछा जा सकता है आपको जो अशोकन इंस्क्रिप्शन में कौन कौन से ये मेंशन है, तो क्या आप लिखे तक्षशिला, उज्जैनी, तक्षशिला, श्रवणगिरी। ओके, इफ वी एग्जामिन द कंटेंट ऑफ दीज इंस्क्रिप्शन, अगर हम इंस्क्रिप्शन को अच्छी तरह एग्जामिन और पढ़ पाते हैं तो वी फाइंड वर्चुअली द सेम मैसेज इंग्रेव्ड एवरीवेयर, यही मैसेज हर जगह पे इंग्रेव्ड है। ओके, हर जगह पे यही मैसेज दर्शाया गया है। फ्रॉम द प्रेजेंट डे, जैसे आप देख सकते हैं नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान से लेके आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड उत्तराखंड तक, ये सारे जगह सेम ही मैसेज यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। ओके, तो हम देखिए कुड दिस वास्ट एम्पायर हैव ए यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। अब यहाँ पे हिस्टोरियन ये मैसेज देना चाहता है और जानना चाहता है जो ये सच्ची में यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है इतने सारे वास्ट एम्पायर को। तो चलिए देखते हैं। हिस्टोरियंस हैव इंक्रीजिंगली कम टू रिलाई दिस इज अनलाइकली, जैसे ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा हिस्टोरियन कहना चाहता है। इतिहासकारों को तेजी से एहसास हुआ कि इसकी संभावना नहीं है। ओके, हिंदी में भी मैंने लिखा है तो आप हिंदी भी पढ़ लीजिएगा। द रीजन्स इंक्लूडेड विद इन द एम्पायर आर जस्ट टू डाइवर्स, बिकॉज बहुत डाइवर्स, हमारी कंट्री कैसी है, डाइवर्स कंट्री है, डिफरेंट रिलीजन्स है, डिफरेंट कम्युनिटीज है, तो उनका भी एम्पायर कैसा था, डाइवर्स था। ओके, इमेजिन द कंट्रास्ट बिटवीन द हिली टेरेन ऑफ अफगानिस्तान। अब आपको इमेजिन करने के लिए हिस्टोरियन कहता है, आप इमेजिन कीजिए कहाँ अफगानिस्तान में जहाँ पे हिली टेरेन है और उड़ीसा कोस्ट, जब आप वहां के दोनों पीपल की अगर स्टडी करोगे, जहाँ की कम्युनिटीज को स्टडी करोगे तो दोनों का क्या है, डाइवर्स कल्चर है। Okay, so it is likely that administrative control was strongest in area, जो यहाँ पे administrative control था बहुत strongest था around the capital and the provinces। अब जो main capital जो city होता था और जो main provinces होता था वहाँ पे administrative controls का hold बहुत अच्छा होता था। क्यों? Because other ruler can invaded it, इसलिए वहाँ पे होल्ड बड़ा अच्छा होता था। दिस सेंटर वर केयरफुली चूज, उस सेंटर जो उसको बहुत अच्छी तरह से चूज किया जाता था, जैसे तक्षशिला एंड उज्जैनी बीइंग सिचुएटेड ऑन इंपोर्टेंट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रूट पे उनको सिचुएट किया गया था। वाइल श्रवणगिरी जैसे गोल्डन माउंटेन जिसे कहा जाता है वाज पॉसिबली इंपोर्टेंट फॉर टैपिंग द गोल्ड माइंस ऑफ कर्नाटका। कम्युनिकेशन अलोंग बोथ लैंड एंड रिवराइन रूट्स वाज वाइटल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द एम्पायर। कम्युनिकेशन का होना बहुत जरूरी है अगर कोई वास्ट एम्पायर सर्वाइव करती है तो। ओके, सो हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। जर्नी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्रोविंस could have taken weeks if not month। अगर जर्नी देखे जाए तो एक वीक तो लगी थी एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में कम्युनिकेट करने के लिए और जाने के लिए। दिस मीन अरेंजिंग ऑफ प्रोविंस एज वेल एज प्रोटेक्शन ऑफ दोज हु वर। अब देखो अगर हम एक प्रोविंस से दूसरी प्रोविंस जा रही, चाहे ग्रुप ऑफ पीपल जा रहे, तो उनका प्रोटेक्शन होना बहुत जरूरी है, नहीं तो रास्ते में क्या है कोई उन्हें लूट लेगा। ओके, कोई अदर कम्युनिटी चाहे अदर डायनेस्टी उसे डिस्ट्रॉय कर सकती है, उन्हें मार सकती है। ओके, तो यहीं पे प्रोटेक्शन ऑफ दोज हु वर ऑन द मूव। इट इज ऑब्वियस दैट आर्मी वाज एन इंपॉर्टेंट मींस फॉर इंश्योरिंग द लिटर। ओके, मैगस्थनीज मेंशन। अब मैगस्थनीज जो बुक है उनके देखते हैं उन्होंने क्या लिखा था। जो कमिटी विथ 6 सब कमिटी, एक कमिटी है जिसमें 6 कमिटी है फॉर कोऑर्डिनेटिंग मिलिट्री एक्टिविटी के लिए। अब हर कमिटी को यहाँ पे अच्छी तरह पूछते, एक क्वेश्चन अगेन फ्रॉम दिस कमिटी, एक क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, पता है। देखते हैं, एक कमिटी क्या था, नेवी के लिए था। ओके, दूसरी कमिटी क्या था, ट्रांसपोर्ट के लिए था। ओके, तीसरी कमिटी क्या था, फुट सोल्जर। ओके, चौथी कमिटी हॉर्सेस, 5th कमिटी चैरोट। ओके, 6th एलिफेंट। जिसमें से जो हमारा सेकेंड सब कमिटी था वो रेदर वेरिड, उसके जो वर्क है वो वेरी हो सकते हैं, जैसे वो बैलगाड़ी को अरेंज करना, इक्विपमेंट के लिए, फूड फॉर सोल्जर्स के लिए एंड फोडर के लिए। ओके, देन उसके बाद रिक्रूटिंग एनिमल सर्वेंट आते से लुक आफ्टर द सोल्जर, वो सोल्जर्स की देखभाल के लिए वो करते थे। ओके, दोनों हम देखते हैं अगेन। अशोका ऑल्सो ट्राई टू होल्ड हिज एम्पायर टुगेदर बाय। अब देखो अशोका ने क्या किया, जब उन्होंने धम्म की पॉलिसी अपनाई तो सबको एक साथ छत्र के छाया में लाना चाहा विद द हेल्प ऑफ धम्म पॉलिसी। वही उन्होंने क्या, द प्रिंसिपल्स ऑफ विच वी हैव सीन
वर सिंपल एंड वर्सली यूनिवर्सल, जो हम उनके प्रिंसिपल जो सिद्धांत पढ़ते हैं वो यूनिवर्सली थे। ओके, यहाँ पे दिस अकॉर्डिंग टू हिम वुड इंश्योर द वेल बीइंग ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड एंड द नेक्स्ट, जैसे पीपल का क्या वेल बीइंग करना। ओके, देन देखते हैं स्पेशल ऑफिसर, जिसे धम्म महामता, स्पेशल ऑफिसर, अभी अगेन ये क्वेश्चन, धम्म महामता, धम्म महामता किसे बोलते हैं, जो स्पेशल ऑफिसर अपॉइंटेड होते थे टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ धम्मा। व्हाई इज द लैंड कैपिटल कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट, बताओ लैंड कैपिटल क्यों इंपॉर्टेंट है। कुड रूलर्स हैव engrave inscription in area that were not included within the empire, ऐसा हो सकता है क्या? ऑब्वियसली बात है, अगर वहां पे वो रूल किया, इन्वेड किया है तो वहां पे वो कर सकता है। लैंग्वेज एंड इंस्क्रिप्ट, मोस्ट अशोकन इंस्क्रिप्शन वर इन प्राकृत लैंग्वेज while those in northwest of the Greek, ओके, कहां पे, while those in the northwest of the सबकॉन्टिनेंट वेर इन अरमैइक एंड ग्रीक। मोस्ट प्राकृत इंस्क्रिप्शन जो था रिटन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट में था। ओके, हाउएवर सम इन द नॉर्थ वेस्ट वेर रिटन इन खरोस्ती, नॉर्थ वेस्ट में खरोस्ती में। द अरमैइक एंड द ग्रीक स्क्रिप्ट वर यूज्ड फॉर इंस्क्रिप्शन इन कहां, अफगानिस्तान में। तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, अरमैइक एंड ग्रीक स्क्रिप्ट्स कहां, अफगानिस्तान में, नॉर्थ वेस्ट खरोस्ती। What the king's official did, अब यहाँ पे लिखा गया है जो भी ऑफिशियल होते थे, जो ऑफिसर्स होते थे, जिनकी ड्यूटी होती थी, वो उनकी क्या क्या ड्यूटी होती है आप देख सकते हैं, जैसे सुप्रिटेंडेंट, रिवर्स, लैंड, ट्रांसपोर्ट, पानी सबको इक्वल वे में मिले, यही सब यहाँ पे लिखा गया है। जो ऑफिसर्स होते थे उनका क्या क्या यहाँ पे वर्क होता था। अब देखो लैंड कैपिटल, ओके, आप देख सकते हैं लैंड कैपिटल, आप अपने टेबल पे रखिए, आपको इंस्पिरेशन मिलता रहेगा। अब देखो मेजर रॉक एडिक्ट, ये मेजर रॉक एडिक्ट जहां जहां इनके पाए गए हैं आप देख सकते हैं। देन है माइनर रॉक एडिक्ट्स, ओके, और ये भी यहाँ पे है। पिलर इंस्क्रिप्शन, पिलर पे जो अशोका ने इंस्क्रिप्शन लिखा है, अभी हम देखेंगे दोनों में डिफरेंस। अगेन देखो, अब यहाँ पे देखो मेजर रॉक एडिक्ट्स, माइनर रॉक एडिक्ट्स एंड पिलर इंस्क्रिप्शन। मेजर रॉक एडिक्ट क्या कहता है, मैसेज ऑन लार्ज रॉक, ओके, लार्ज रॉक पे, ये मैसेज स्मॉल रॉक पे, और ये मैसेज ऑन स्टोन पिलर पे। ओके, इशूड बाय अशोका, पर्पल धम्म, पब्लिक वेलफेयर, जैसे हमने कहा वेलबींग ऑफ द पीपल। यहाँ पे बुद्धिस्ट एंड मोरल एडवाइस, ओके, जो मोरल एडवाइस उन्होंने देना चाहा लाइफ के बारे में। ओके, लॉज एंड एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे कंट्रीज को रन करना है। लोकेशन गिरनार, कालसी, मास्की, ब्रह्मगिरी, सारनाथ, पूछ सकता है ये लोकेशन क्या, मैंने जस्ट दो लोकेशन दिए हैं, आपको टफ ना लगे। व्हेन वी विल स्टार्ट मोडुलर कोर्स देन वी विल अगेन ईच एंड एवरी लोकेशन लॉन्ग डिटेल 14 एडिक्ट्स इसमें लिखा गया है, जो मेजर रॉक एडिक्ट्स में शॉर्ट एंड सिंपल वे में, और फ्यूअर बट डिटेल मैनर में, जैसे 7 एडिक्ट्स वहां पे लिखे गए हैं। अब देखिए हाउ इंपॉर्टेंट वाज द, अब एम्पायर जो है वो कैसे इंपॉर्टेंट है। देखिए व्हेन हिस्टोरियन बिगेन रिकंस्ट्रक्टिंग अर्ली इंडियन हिस्ट्री, जब हिस्टोरियन अर्ली हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करता है और लिखता है और जानता है 19 एंड द इमर्जेंस ऑफ द मौर्य एम्पायर वाज रिगार्डेड एज ए मेजर लैंडमार्क, जब वो मौर्य एम्पायर के जानता है। बट इंडिया वाज देन अंडर द, उस समय पे इंडिया किसके अंडर था, कॉलोनियल रूल के अंदर, और ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट था। ओके, 19 अर्ली 20th century इंडियन हिस्टोरियंस अंडर फाउंड द पॉसिबिलिटी दैट देयर वाज एन एम्पायर, वहां एम्पायर इन अर्ली इंडिया बहुत चैलेंजिंग एंड एक्साइटिंग, जिसको जो चैलेंजिंग भी था और एक्साइटिंग भी था। ओके, ऑल्सो सम ऑफ द आर्कियोलॉजिकल फाइंड एसोसिएट विद द मौर्यंस, कुछ फाइंड्स मिलते हैं जो मौर्यन पीरियड के थे, इंक्लूडिंग स्टोन स्कल्पचर, जैसे स्टोन स्कल्पचर कंसिडर्ड टू बी एग्जांपल ऑफ द स्पेक्टेकुलर आर्ट टाइपिकली ऑफ द एम्पायर, जो उनके स्टोन स्कल्पचर मिले। रीड द एक्सेप्ट फ्रॉम द मगस्थीनीज के जो मिले हैं, जो भी उनके डॉक्यूमेंट फ्रेगमेंटेड, एंड अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा। व्हाट एक्सटेंड इंडिका आप कह सकते हो मगस्थीनी की जो बुक थी, आई थिंक दिस टेक्स्ट यूजफुल टू रिकंस्ट्रक्टिंग द हिस्ट्री ऑफ मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखते हैं, many of these historians found the message Ashokan inscription were very different from that of the most other, जितने भी अदर रूलर्स है उससे ये कुछ इंस्क्रिप्शन क्या थे, अलग थे। ओके, सजेस्टिंग दैट अशोका वाज मोर पावरफुल, बहुत पावरफुल था, इंडस्ट्रियस था, ऑल्सो मोर हम्बल, अगर हम्बल भी वो उसके साथ थे। देन लेटर रूलर्स हु अडॉप्टेड ग्रैंडाइज, बहुत
अच्छे टाइटल उन्होंने अडॉप्ट किया. सो इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट नेशनल लीडर इन द 20th सेंचुरी रिगार्डेड हिम एज ए इंस्पायरिंग फिगर. ओके, तो इसलिए नेशनल लीडर जो उसे क्या रिगार्ड करते हैं, इंस्पायरिंग फिगर के तौर पे. एट हाउ इंपॉर्टेंट वाज द मौर्यन एम्पायर, कैसे मौर्यन एम्पायर इंपॉर्टेंट था, यहाँ पे हम देखेंगे. इट लास्टेड जो 100 साल तक चला, और शायद ये नॉट अ वेरी लॉन्ग टाइम. जब हम इंडिया सब कॉन्टिनेंट की अगर बात करते हैं तो उनके टाइम मौर्यन एम्पायर को. ओके, बिसाइड इसके अलावा हम देखते हैं मैप में, यू विल नोटिस दैट द एम्पायर डिड नॉट इनकम्पासेस द एंटायर, पूरे सब कॉन्टिनेंट को नहीं वो इनकम्पासेस कर पाते हैं. एंड इवन विद इन द फ्रंटियर ऑफ द इवन एम्पायर ऑल्सो कंट्रोल वाज नॉट, कंट्रोल यूनिफॉर्म नहीं था. बाय द 2nd century BC न्यू चिल्ड्रन से किंगडम इमर्ज सेवरल पार्ट. बाय द 2nd century BC जब टाइम पीरियड आता है तो न्यू छोटे छोटे राज्य का डेवलप होता है. आप देखेंगे जिसमें से चेरा, चोला, पांड्या. पहले उससे पहले अगेन क्वेश्चन आंसर वर्ड मीनिंग्स हर किसी का मैंने अगेन बहुत ही अच्छी तरह यहाँ पे डिफाइन किया है. जस्ट गो एंड रीड वेरी केयरफुली. ओके, देन उसके बाद हम देखें न्यू नोशन ऑफ किंगशिप, चीफ्स एंड किंग्स इन द साउथ. अब छोटे छोटे हम जो साउथ में जो चीफ्स एंड किंग्स जो इमर्ज होते हैं, जैसे हम चोला की बात करेंगे, पांड्याज की बात करेंगे, चेरा की बात करेंगे, उसके हम देखेंगे जो उनका रोल क्या होता था, कैसा सोसाइटी में उनका कनेक्शन था, वो देखते हैं. द न्यू किंगडम दैट इमर्ज इन द डेक्कन, अगेन डेक्कन की बात होती है. एंड फर्दर साउथ की बात करेंगे, इंक्लूडिंग द चिफ्टन ऑफ चोला, चेरा, पांड्या, तमिल. अगेन द नेम ऑफ द एशियन तमिल कंट्री को तमिलकम बोला गया है यहाँ पे, विच इंक्लूडेड पार्ट ऑफ प्रेजेंट डे विच आंध्र प्रदेश, केरला, एडिशन टू तमिलनाडु, प्रूव टू बी स्टेबल एंड प्रोस्पेरस, जिसे स्टेबल वहां पे था और प्रोस्पेरस भी था. ओके, द न्यू किंगडम दैट इमर्ज इन द डेक्कन एंड फर्दर साउथ, अगर हम जाते हैं तो इंक्लूडिंग द चिफ्टम ऑफ द चोला, चेरा, पांड्या. इन अगेन दिस इज द सेम लाइन आई थिंक. ओके, सो हम देखते हैं यहाँ पे देखते हैं चीफ एंड चिफडन, अ चीफ ऑफ पावरफुल मैन हुज पोजीशन में और मे नॉट बी हेरिडेटरी. अब उसके डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखे, मीनिंग लिखे, उनका जो हेरिडेटरी नहीं हो सकते. ही डाइवर्स सपोर्ट फ्रॉम फास्ट नी फोक, जो उनके जो होते थे फैमिली से उनको सपोर्ट मिलता था. हिज फंक्शन में इंक्लूड परफॉर्मिंग स्पेशल रिचुअल, लीडरशिप इन वार, उनके फंक्शंस के बारे में यहाँ बात किए गए. ठीक है, जो वारफेयर, रिचुअल्स, डिस्प्यूट्स, ही रिसीव्स गिफ्ट्स फ्रॉम हिज व्हाट सबऑर्डिनेट, उनसे वो कलेक्ट टैक्स करते थे. ऑफन डिस्ट्रीब्यूटेड दिस अमंग्स हिज सपोर्ट, और उसको जो उनको सपोर्ट करते उसमें डिस्ट्रीब्यूट करते. देयर इज नो रेगुलर आर्मी एंड ऑफिशियल्स इन चिफ्टम, वहां पे कोई उनके पास कोई रेगुलर आर्मी नहीं होती थी. तो ये मैप है, आप देख सकते हैं. चोला, पांड्या, चेरा पूछे जाते इनके सिंबल क्या थे. चोला के तो टाइगर आप बोल सकते हो, इनके क्या थे तो आप बोल सकते हो. ठीक है, फिश बोल सकते हो, पांड्याज के बो एंड ऑरो बोल सकते हो, चेरा के तो ये थे. अब देखते हैं एलिफेंट, यहाँ पे एक स्टोरी लिखा गया जो अर्थशास्त्र जो कौटिल्य ने लिखा था, जो एलिफेंट को कैप्चर कैसे करते थे. द अर्थशास्त्र लेड डाउन द माइन्यूट डिटेल्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन. दिस इज व्हाट सेव हाउ कैप्चर एलिफेंट. ओके, तो आप देख सकते हैं गार्ड ऑफ एलिफेंट, गार्ड होते थे किसके द्वारा से जो एलिफेंट को पालते थे. हु इन चैन, एलिफेंट के लेग में क्या चैन लगाते थे. हु गार्ड द बाउंड्रीज को जो गार्ड करते थे. दोज हु लिव इन फॉरेस्ट में जो रहते थे. दो एलिफेंट नर्स जो उनका टेक केयर करते थे. ओके, हेल्प 7 फीमेल एलिफेंट को से हेल्प लेते थे कैसे, और उनका ट्रेसेस करते थे यूरिन और डंग को, जिसके कारण पता लगा पाते थे उनका झुंड का एलिफेंट का. ओके, अकॉर्डिंग टू ग्रीक सोर्सेज जो है, जो मगस्थनीज जो लिखते हैं, रूलर हैड ए स्टैंडिंग आर्मी. स्टैंडिंग आर्मी की बात किया गया, और कितने थी 6 लाख फुट सोल्जर, 30,000 cavalry, 9,000 elephant, and some historian consider these accounts to be exaggerated. और इस कुछ हिस्टोरियन मानते हैं जो ये जो भी अकाउंट है इसको बढ़ा चढ़ा के लिखने की कोशिश की है. ओके, सो यहाँ पे देखिए डिवाइन किंग की यहाँ बात करते हैं. वन मीन ऑफ क्लेमिंग हाई स्टेटस वाज टू आइडेंटिफाई विद अ वेराइटी ऑफ डेटीज की बात करेंगे. ठीक है, देवों की बात करें. दिस स्टडी इज बेस्ट एग्जाम कुशांस. अब कुशांस जब आते हैं 1st century BC से 1st century C की आते हैं, तो रूल ओवर अ वास्ट किंगडम एक्सटेंडिंग फ्रॉम व्हाट सेंट्रल एशिया टू नॉर्थ वेस्ट इंडिया. दिस हिस्ट्री हैज बीन रिकंस्ट्रक्टेड
from inscription and textual tradition. When Kushans enter in India, they adopted the Devputra title, मतलब देवताओं के पुत्र। तो वो यहाँ पे हम बात करेंगे notion of kingship they wish to project and perhaps best evidence in their coins and sculpture. Closest statue of Kushans rulers have been found in a settled in shrine at Mat near कहाँ है, मथुरा पे, वहां पे स्टैचू मिला है। Similar statue have been found in shrine in कहाँ, अफगानिस्तान as well. Some historian feel this, कुछ इतिहासकार इसको मानते हैं, indicate that the Kushan considered themselves godlike. वो अपना कंपेयर किससे करते थे, देवताओं से करते थे, है ना, godlike. Many Kushans rulers also adopt the title of क्या, देवपुत्रा, सन ऑफ गॉड, पॉसिबली इंस्पायर्ड बाय चाइनीज रूलर्स, जैसे चाइनीज रूलर अडॉप्ट करते तो शायद वो उनसे इंस्पायर हो, हु कॉल देमसेल्व्स सन ऑफ हेवंस, जो से सन ऑफ हेवंस बोलते थे। बाय द 4th century देयर इज एविडेंस ऑफ लार्ज स्टेट इंक्लूडिंग गुप्ता एम्पायर। देखेंगे हम गुप्ता एम्पायर को नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे हम अच्छी तरह। देन उसके बाद है मेनी ऑफ दिस डिपेंडेंट ऑफ सामंत, कुछ ऐसे थे जो सामंत पे, कुछ रूलर ऐसे थे जो सामंत पे इंडिपेंडेंट थे। ओके, मैन हु मेंटेन देमसेल्फ थ्रू आउट द लोकल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग कंट्रोल। अब जो सामंत क्या है, अब देखिए यहाँ मैं डायग्राम बनाता हूँ, जैसे ये रूलर हुआ, सपोज यू आर द किंग, ठीक है, एंड यू हैव डिस्ट्रीब्यूटेड फ्यू लैंड टू फ्यू पीपल। ओके, सपोज इस फिर कम्युनिटीज यू कैन से आप कह सकते हो, तो कुछ कम्युनिटीज को आपने कुछ लैंड दे दिए। ओके, और इनको बोला आपने जो मुझे जब भी जरूरत पड़ेगी तो आप मुझे क्या हेल्प करोगे, क्या वेपन दोगे, आर्मीज दोगे, ओके, रिसोर्सेज दोगे, फूड मटेरियल्स दोगे, तो हेल्प करोगे। तो उसी को यहाँ पे बेसिकली सामंत बोला गया है, ठीक है। तो आप समझ गए, मैंने यहाँ पे डायग्राम करके आपको बताया है। और themselves to the local resources including control over land, they offer homage and provide military support to rulers, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी। पावरफुल सामंत कुड बिकम, अब जो उसमें से जो पावरफुल होगा वो नहीं देगा और खुद किंग बन जाएगा। ओके, वीक रूलर माइट फाइंड देमसेल्फ बीइंग रिड्यूस्ड टू पोजीशन, और जो वीक रूलर थे उसको सबऑर्डिनेट के तौर पे रूल करना पड़ता था। ओके, तो हिस्ट्रीज ऑफ गुप्ता रूलर्स, जो हिस्ट्रीज था गुप्ता रूलर्स हैव बीन रिकंस्ट्रक्ट फ्रॉम लिटरेचर। ओके, गुप्ता रूलर्स की यहाँ बात की है। क्वाइंस एंड इंस्क्रिप्शन इंक्लूडिंग प्रहस्ती कंपोज इन प्रेज ऑफ किंग, उसको क्या बोलते हैं, प्रहस्ती। अब पूछा जा सकता है प्रहस्ती का मतलब क्या है, जैसे हरि सेन का पढ़ेंगे इलाहाबाद प्रहस्ती। ओके, एंड पैट्रन इन जर्नल बाय पोएट्स, जो पोएट होते हैं वो उसको प्रशंसा करते हैं। वाइल हिस्टोरी ऑफन अटेम्प्ट टू ड्रॉ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, कुछ इतिहास का फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं फ्रॉम सच कंपोजिशन, इस कंपोजिशन से दोज हु कंपोज एंड रीड देम ऑफन ट्रेजर देम एज वर्क ऑफ पोएट्री, जो उनको लिखते हैं तो उससे हिस्टोरियन क्या कुछ खोजने की कोशिश करते हैं। ओके, द प्रयाग प्रस्ती नोन एज इलाहाबाद पिलर, जिसको प्रयाग प्रस्ती अगर पूछा जाएगा एग्जाम में किसको बोलते हैं तो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में बोलते हैं। कंपोज्ड इन विच लैंग्वेज, संस्कृत, बाय किसके द्वारा, हरिसेन के द्वारा। किसके कोर्ट पोएट थे, समुद्रगुप्त मौर्य के। तो आप ये याद रखिएगा। आर्गुएबली द मोस्ट पावरफुल ऑफ द गुप्ता रूलर, गुप्ता रूलर का मोस्ट पावरफुल इनको कहा जाता है। 4th century इन केस 4th century के अराउंड। ओके, पांड्या चिप, अब यहाँ पे एक है पांड्या चिप, वो जब फॉरेस्ट में विजिट करते हैं, जिनका नाम क्या था, सेनगुतवन उनका नाम था। वो जब फॉरेस्ट में विजिट करते तो देखते हैं उनके साथ क्या जो अदर पीपल होते हैं वो उनको कैसे प्रेज करते हैं। इट इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम द शिलापदिक्रम, एक क्या था, एपिक है, ठीक है, जो तमिल रिटन में शिलापदिक्रम जो लिखा गया है। व्हेन ही विजिटेड द फॉरेस्ट, जब वो फॉरेस्ट में विजिट करते हैं, पीपल केम डाउन द माउंटेन, पीपल पहाड़ों से नीचे आते हैं, सिंगिंग करते हैं, डांसिंग करते हैं, ऐसा लगता है जैसे डिफीटेड सो रिस्पेक्ट टू विक्टोरियस किंग, जो युद्ध जीत के आए हैं जैसे। सो डिड दे ब्रिंग गिफ्ट्स, बहुत सारे गिफ्ट्स लाते, जैसे फ्रूट, मेडिकल, कोकोनट, वो बनानाज एंड सो ऑन, उनके लिए लाते हैं। देन आप देख सकते हैं यहाँ पे कुषाण किंग का एक पे खुद है, एक पे गॉड का उन्होंने है, तो उन्होंने क्या अपने देवपुत्र से अपने आप को कंपेयर किया था। ओके, उसके बाद देखते हैं इन प्रेज ऑफ समुद्रगुप्ता। अब समुद्रगुप्ता को प्रेज कैसे करते हैं। दिस इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लाइन, जो कहां से गया, प्रयाग प्रस्ती, जिसे
द इंस्क्रिप्शन भी बोल सकते हैं। ही वॉज विदाउट एंटोगनिस्ट ऑन अर्थ, ओके, उसके पृथ्वी पर उनके विरोधी कोई नहीं खड़ा था। बाय द ओवरफ्लोइंग ऑफ द मल्टीपल, उनके पास बहुत सारे क्या क्वालिटीज थे, जैसे आप बोल क्वालिटीज अडोन बाय 100 ऑफ गुड एक्शन, जैसे आप उनके एक्शन देते फेम ऑफ द किंग, अदर किंग को तो अदर किंग्स उनके सामने टिक ही नहीं पाते थे। पुरुषाह द सुप्रीम बीइंग, सो प्रोस्पेरिटी ऑफ द गुड एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द बैड। इसको मतलब समुद्रगुप्त को है ना बहुत अच्छी तरह जो उनके पोइट थे हमारे हरिसेन, उन्होंने प्रेज किया है। देख, हार्ट कैन बी कैप्चर ओनली बाय डिवोशन ऑफ ह्यूमिलिटी पोजेस्ड बाय कंपैशन, ये मेनी हंड्रेड थाउजेंड ऑफ काउ, चैरिटेबल थे सब, उनके बाद खजाना था, काइंडनेस था, मतलब जितना प्रेज करना चाहता है वो वहां पे पोइट उनके बारे में करना चाहता है, वही यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब देख सकते हैं कुषाण रूलर का डिस्कस व्हाट डू यू थिंक, ये आपके लिए मैंने कुषाण किंग का छोड़ा है, बस आपको ये पता लगाना ये कौन है, बस आपको जाना है और पता लगाना कौन है, कौन से म्यूजियम में है ये भी। ओके, अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम देखते हैं। हु फाउंडेड द मौर्यन, अगेन वेरी इजी, हु रोट द अर्थशास्त्र, अशोका inscribed his message on, again very easy questions, the capital of Mauryan empire, Kushan's rulers adopted the type, fill in the blanks, Magastini was a Mauryan empire lasted for कितने years, a chief receives gifts from the what, ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स और शॉर्ट आंसर देखिए। व्हाट वर द मेन सोर्स ऑफ रिकंस्ट्रक्टिंग मौर्यन हिस्ट्री, क्या सोर्सेज हो सकते हैं, अशोक का धम्मा क्या है, हाउ मौर्यन एम्पायर एडमिनिस्टर, हु आर चीफ्स कौन से थे, डिवाइन किंगशिप क्या होती है। ओके, देन डिस्कस द, ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, डिस्कस द ग्रोथ ऑफ एक्सपेंशन ऑफ मौर्यन एम्पायर का, कैसे ग्रोथ एक्सपेंशन वो डिस्कस करना है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मौर्यन एम्पायर, डिस्क्राइब द न्यू नोशन ऑफ किंगशिप एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड, हाउ इंपोर्टेंट वाज मौर्यन एम्पायर इन इंडियन हिस्ट्री। ओके, सो वी हैव डिस्कस ऑल दिस थिंग, ये हमने शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैंने आंसर भी डाले हुए, जस्ट डोंट ट्राई टू गो एनीवेयर, या और आपके लिए स्पेशल सेट है सॉल्व करने के लिए, अटेम्प्ट कोई भी 6 क्वेश्चन आप कर सकते हो, अगर आपको पूरे आते हैं तो पूरे भी कीजिए क्वेश्चंस को, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए हैं। ओके, सो गाइज ऑल हैव डन, यहां तक हमने देखा, बहुत ही अच्छी तरह से सारे चैप्टर में को हमने अच्छी तरह स्टडी किया। ये फर्स्ट पार्ट था सेकेंड चैप्टर का, और हम इसके बाद एक पार्ट और करेंगे इस चैप्टर, उसमें हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। ये समराइज अगर इसमें मैं करना चाहूँ तो टाउन्स, किंग्स, फार्मर्स का इवोल्यूशन हुआ, बहुत सारे रूलर्स को बड़े, प्रयाग प्रस्ती किसे कहते हैं, ओके, देन उसके बाद एक क्वाइंस को हमने स्टडी किया, ये सब यहाँ पे सारे कुछ रखे गए थे। फिर हमने लोकल चिप्स के बारे में पढ़े, जिसमें चोला, चेरा, पांड्याज को हमने स्टडी किया। सो ये मौर्य कोर्स हमारे लॉन्च होने वाले हैं। सो आप अगेन इफ यू वांट टू गेट दीज नोटिफिकेशन, यू हैव टू जस्ट हिट द प्रेस लाइक बटन, ओके, एंड नोटिफिकेशन बटन। देन ये हमारे फाउंडेशन कोर्स ऑलरेडी अभी चल रहे हैं, आप जाइए और इसको भी देखिए। ओके, सो अगेन गाइज, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस सीरीज, इफ यू वांट टू गेट मोर, हमसे और कुछ चाहते हैं आप, अगेन रिगार्डिंग एनी एग्जाम, किसी भी एग्जाम्स के लिए कुछ भी हेल्प चाहिए, तो हमारे जितने भी एमएलएम टीम के मेंटर्स हैं, लाइक हमारे जितेंद्र सर हुए, मोंटी सर हुए, शुभम सर हुए, अरमान सर हुए, वो हमेशा आपके लिए खड़े हैं। तो आप प्लीज बेहिचक आप हमें मैसेज कर सकते हैं, ओके सर, जो हम इस एग्जाम की प्रिपरेशन करना है, कैसे करना है क्या पढ़ना है, ओके। और जल्दी हमारे एमएलएम टीम के द्वारा हर टीचर की बुक भी लॉन्च होने वाली है, जो कि हर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। थैंक यू सो मच।